वेलकम बच्चों, वेलकम बैक to my channel Fair of Maths Atayel Maza. In this video we are going to see integration by parts, that is second method of integration. But before that, don't forget to like and subscribe my channel. So let's start, student. But before going to see integration by parts, there are several questions in my mind, that is, who invented integration by parts, why do we use integration by parts, what is integration by parts, etc. So who invents integration by parts? The mathematician Brock Taylor discovered integration by parts in 1715. Why do we use integration by parts? To find the integral of product of two different types of functions such as logarithmic functions, inverse function, trigonometric functions, algebraic functions and exponential function. What is integration by parts? Integration by parts is a technique for performing indefinite integration or definite integration by expanding the differential of a product of functions and expressing the original integral in terms of a known integrals. Now see integration by parts. The integration by parts say if we have the product of two function under integral sign, so what we have to do here, we consider two function, first and second function. So expand this integral like this: first function into integration of second function minus integration of derivative of first function into integration of second function. दिस इज़ इन जनरल। बेटा ये जो है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैंने आपको इन जनरल बताया है। तो जनरली आपके टेक्स्ट बुक में आपको गिवन है u इंटू वी के फॉर्म में। okay, so here u and v are two function of x. So u into v means u is our first function and v is second function. So in this case we write u into integration of v minus derivative of u into integral of v. Now here observe, here we have to choose first and second function. For choose u in this order, that is Eilert rule, Eilert rule or LIAT, LIAT. Here I stand for inverse function, L stand for algebraic function, L stand for logarithmic function, A stand for algebraic function, T stand for trigonometric function and E stand for exponential function. Now note number 2, if second function is not given, take it as a first, take it as a 1 or unity. So let's start, student, integration by parts. Here's some question of integration by parts. मैंने बेटा कुछ क्वेश्चन लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के। ओके, स्लाइड पे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, किसने इसको इन्वेंट किया। तो वो चीज़ें बेटा सारी अच्छे से आप सुनोगे, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने आपको रूल भी वहाँ एक्सप्लेन किया, एक बार आपको फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, कि रूल है बेटा, कहाँ इसको यूज़ करोगे जब आपको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस गिवन रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यू एंड वी, ठीक है। और ये रूल को अप्लाई कैसे करना है आपके सामने ये लिखा है बेटा। इससे पहले मैंने आपको स्लाइड पे भी ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ यू into integration of second function minus integration of derivative of first into integration of second function, ठीक है। और यहाँ पर बेटा सिलेक्शन होता है फंक्शन का, फंक्शन को कैसे चूज़ करना है, कौन सा फंक्शन आपको फर्स्ट लेना है, कौन सा फंक्शन आपको सेकंड लेना है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रूल होता है आइलेट रूल। इसको आप कभी नहीं भूलोगे बेटा। मैंने आपको ये भी बताया कि आई स्टैंड फॉर इन्वर्स फंक्शन,
L stand for logarithmic function, A stand for algebraic, T stand for trigonometric function and E stand for exponential function. अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या बच्चों को ये बेसिक फंक्शन पता है? बेटा अगर आपको नहीं पता है तो आप ये जल्दी से क्लियर कर ले कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है सॉरी, एल्जेब्रिक फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है. जब तक आपको बेटा ये फंक्शंस नहीं पता रहेंगे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो इसके पहले मैंने इंटीग्रेशन का मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिया है. यहाँ कहीं तो भी इसका बेटा आई बटन आएगा, सो आप वो मेथड भी देखें. ठीक है, तो मैंने फर्स्ट मेथड लिया है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. द सेकंड मेथड इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और एक और मेथड बची है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. तो मैं आने वाली वीडियोस में उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा बेटा. सो हेयर सी द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. अब आपको बेटा ये समझ में आना चाहिए कौन से फंक्शन का प्रोडक्ट आपको गिवन है. जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन है, बच्चों को यही नहीं पता रहता बेटा. एक्स स्क्वायर जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है और लॉग है मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन है. सो यहाँ क्लियरली दिख रहा है बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स. अब आपको देखना क्या होता है बेटा, इसमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा है. तो फर्स्ट फंक्शन देखने के लिए आपको ये जो लेटर्स है, आइलेट जो रूल है, ये जो रूल बताया है आपको आइलेट रूल, आइलेट रूल, इसके अकॉर्डिंगली आपको बेटा फंक्शन लेना होता है. जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है और लॉगरिथमिक क्या है बेटा, लॉग एक्स क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है. तो आपको अब ये देखना है एल पहले आ रहा है कि ए पहले आ रहा है. सो क्लियर दिख रहा है बेटा एल पहले आता है देन इसके बाद में ए आता है. तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि लॉग एक्स जो है बेटा ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और एक्स स्क्वायर आपका सेकेंड फंक्शन है. तो जस्ट आपको ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते आना चाहिए. नाउ ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट आई एम डूइंग. सो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, ध्यान से देखोगे बेटा आप, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स. ठीक है, अब ये तो बेटा कंफर्म हो ही गया कि फर्स्ट फंक्शन आपका log x है, मतलब ये आपका u है. मैं आपको लिख देता हूँ ये u है बेटा आपका और ये v है. ठीक है, सो i इज इक्वल टू u दैट इज log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज v. सो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, बच्चे बेटा माइनस ही नहीं लिखते, माइनस लिखना चाहिए, माइनस आएगा बेटा, रूल में माइनस है इसलिए आपको माइनस लिखना होता है, इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, और इसको ऐसे क्लोज किया जाता है बेटा करली ब्रैकेट से और बाहर लिखा जाता है डी एक्स. ये डी एक्स ना बेटा इसके लिए, ठीक है, ये वाला डी एक्स इसके लिए, सारा मीनिंग आना चाहिए. बच्चे ये डी एक्स नहीं लिखते बेटा, अगर ये डी एक्स नहीं लिखोगे तो ये इंटीग्रल का मीनिंग चेंज हो जाएगा. ओके, सो हेयर वी टेक इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा आपको आना चाहिए, ये आता है एक्स क्यूब अपॉन 3. ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डेरिवेटिव आएगा बेटा 1 बाय एक्स, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाय 3 इंटू डी एक्स. अब यहाँ पर बच्चे एक चीज़ समझ ले बेटा, यहाँ जो आप इंटीग्रेशन लेते हो ना, आप डायरेक्टली अंदर वो इंटीग्रेशन लिख सकते हो. ठीक है, सो आप इसको डायरेक्टली करने की आदत डालो. ये कब होगी बेटा, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको ये सारी चीज़ें करते आएगी. ठीक है, जैसे आपने यहाँ एक बार इंटीग्रेशन ले लिया, सो आप डायरेक्टली नहीं वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. देखो यहाँ भी एक्स क्यूब अपॉन 3 आ रहा है, यहाँ भी बेटा एक्स क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा. ओके, चलो अब इसको कैंसल आउट करते, ये हो जाएगा बेटा, ये सिंपली एक्स स्क्वायर हो जाएगा. अच्छे से देखोगे आप, इसको लिखा कैसे जाएगा, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स अपॉन 3 आ जाएगा बेटा. यहाँ से 1/3 बाहर ले लो और अंदर ना आपका एक्स स्क्वायर बच जाएगा. सो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है बेटा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी. सो आई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स क्यूब लॉग एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस सी. आप इसको कॉमन भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपने इसको ऐसे भी रखा तो आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेंगे बेटा. टेक का स्क्रीनशॉट, देखो मैंने कैसे इसको अप्लाई किया बाय पार्ट्स को. ठीक है, चलो हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते और देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है. नाउ इन सेकंड क्वेश्चन वी हैव टू गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन. बेटा अब क्या है, इनवर्स फंक्शन का और अलजेब्रिक फंक्शन का कॉम्बिनेशन है. सो
आई तो सबसे पहले आता है, आई स्टैंड फॉर इमरान, आई स्टैंड फॉर इन्वर्स फंक्शन। तो सबसे पहले बेटा आई आता है, सबसे पहले इमरान आता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखोगे, ये आई स्टैंड फॉर इन्वर्स फंक्शन, इमरान नहीं बेटा, आई स्टैंड फॉर इन्वर्स फंक्शन। तो सबसे पहले यहाँ जो आता है ये आता है आई, आई मतलब इन्वर्स फंक्शन, ओके। आई लेट रूल, इसको कभी नहीं बोलोगे आप, आई लेट रूल, ये आ गया मतलब आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ गया, ओके। सो आई सबसे पहले आता है बेटा, मतलब ये आपका फर्स्ट फंक्शन रहेगा और ये एक्स जो रहेगा आपका ये सेकेंड फंक्शन रहेगा। तो डायरेक्टली आई एम राइटिंग, सो लेट आई इज इक्वल टू बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखोगे, फर्स्ट फंक्शन दैट इज tan इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, into integration of second function minus integration of ddx of tan inverse of x, tan inverse of x, tan inverse of x, tan inverse of x, tan inverse of x into integration of x into dx। ये आ जाएगा बेटा आपका बाय पार्ट्स, ऐसे आप अप्लाई करोगे बाय पार्ट्स, ओके। चलो अब इसको आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स लेते आना चाहिए। सो आई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस इसका डेरिवेटिव होता है बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और इधर क्या लिख लोगे बेटा dx लिख लोगे। अब ये प्रॉब्लम में थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बेटा, ये जो इंटीग्रल है ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सो यहाँ पर आपको 1 के साथ में एडजस्टमेंट करना होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट आईएमपी स्टेप है इस प्रॉब्लम के लिए। अब ध्यान से देखोगे मैं क्या करूँगा इसको, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस मैं 1/2 बाहर ले लेता हूँ बेटा और मेरे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx। बेटा सबसे मेन स्टेप आने वाला है इसमें। अब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो आप क्या करोगे, 1 को एडजस्ट करोगे। ध्यान से देखना मैं कैसे करता हूँ, मैं यहीं इसको एडजस्ट करता हूँ। देयरफॉर आई एम राइटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। सर ऐसे क्यों किया, जब आप डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे बेटा तो ये टर्म पूरी कैंसल आउट हो जाएगी, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है tan इनवर्स एक्स, ठीक है। सो ध्यान से देखोगे आप ये वाला स्टेप, देयरफॉर आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटू ब्रैकेट। आप अच्छे से देखोगे, इफ़ वी सेपरेट द डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, सो हेयर सिंपली वी हैव 1 माइनस, जब इसको सेपरेट करोगे 1 के साथ तो बेटा ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा बेटा dx आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में, सो इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स एक्स प्लस सी ओवर। ये वाला स्टेप बेटा इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। ये स्टेप आपको आना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। नाउ मूव ऑन टू लास्ट एग्जाम्पल। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते बेटा जहाँ पर हमको एक ही फंक्शन गिवन है, एक ही फंक्शन गिवन है। मैंने स्लाइड में आपको बताया है, अगर आपको एक फंक्शन गिवन रहा तो आप सेकंड फंक्शन को क्या कंसिडर करोगे, 1 कंसिडर करोगे। अगर आपने स्लाइड अच्छे से सुना हो सकता है बच्चों ने किसी ने स्लाइड को अच्छे से सुना ना हो, तो बेटा उनको मैं ये बता दूं कि आपको अगर एक ही फंक्शन गिवन है, जैसे log x आपको गिवन है, यहाँ पर सेकेंड फंक्शन मिसिंग है, तो सेकेंड फंक्शन आप 1 ले सकते हो, ओके। ले सकते हो कि आपको लेना ही है, सेकेंड फंक्शन आपको 1 ही लेना है, ये आपका रूल है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट कर देता हूँ। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल log x, दैट इज फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड फंक्शन लेना है बेटा आपको 1, ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या लेना है आपको 1, हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी। चलो बाई पार्ट्स अप्लाई कर देते। जैसे ही बेटा अप्लाई करोगे आप, सो फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा log x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होता है बेटा x, लिख दिया डायरेक्टली मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx दैट इज x माइनस
इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स होता है बेटा 1/x, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx दैट इज x इंटू डी एक्स, देयरफॉर x log x माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आ जाएगा x प्लस सी, और यू कैन राइट x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब ये नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, आपको और भी पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स क्या है तो आपने उसको आंसर देना चाहिए x इंटू ब्रैकेट लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। बच्चों को पूछो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स तो वो बोलते हैं 1/x। बेटा 1/x नहीं होता है, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता है ये x इंटू ब्रैकेट लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। आई होप बच्चों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का वीडियो समझा हो या अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।